सभी खिलाड़ियों के जीवन में कैसे वो अपने प्रतिभा में और सुधार कर सकते हैं और उस पे और परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसी ही कई बिंदुओं पर आज चर्चा करी जाएगी, जिसके साथ आज का हमारा प्रथम सत्र हम आरंभ करने जा रहे हैं. Ladies and gentlemen, we'll now begin with this session, What Athletes Need for Success. And to begin with this session, let me humbly invite on stage the moderator for the session. आपकी जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करिए, Mr. Vijay Lokpalli, consulting editor, Sports Star. With a big round of applause, ladies and gentlemen, please welcome him. I request sir to please proceed. We'll straight away start with this session. I'll invite Lalit Upadhyay, Commander Rajgopalan, Sanjeeva Singh, Vijay Yadav. Come. And Suresh Raina unfortunately had to go back, so he will be joining us online. Thank you, Suresh, for joining us. We have kept you waiting. We just started now, and I'll begin with Commander, because he's the one who has done a lot of work for our success at the Tokyo Olympics with his top scheme. That was his idea, and we have worked closely together. So, to begin with, I mean, in your view, what does an athlete need for success? Then I'll go to Suresh. First of all, thanks Sportstar for inviting me here in this conclave. I was just speaking to Ayan and Vijay that it's like jog down the memory lane when you used to rush for every Sportstar, periodical and fight between friends and family that who will get the centerfold of Sportstar, which used to have a big poster of all the sports person. So thank you very much for inviting me. Vijay, one correction. I didn't start the top scheme. Okay, the government started this scheme in 2000, just before 2016, just before the Rio Olympics. However, they did have a structured system at that point in time. There was no dedicated team. So when Colonel Rajyavardhan Rathore took over, he wanted a system where athletes don't have to run around for support. And that is where I came in, and we created a team and the athletes performed very well, endorsing our effort that it was worthwhile, especially seeing the Tokyo results. Coming down to your question that what an athlete requires a whole support system around it. So there are a couple of things which I'll say that I'm a big proponent and a big fan of long-term athlete development plan. So talent, there is no dearth of talent in India. All our athletes, Lalit, Priyanka is sitting there, Vijay, they've all proved it time and again that India is, full of this talent. It was just that ecosystem which was required. So right from the grassroots, a strong grassroots system where the talent is identified based on their potential and not
based on their performance. Unfortunately, from time immemorial, we generally see the performance of the athlete and then pick them up for a scheme. It should be scientifically driven system where we pick up an athlete for a long-term athlete development plan, which also includes that education should form an important part of that system. You can't have that athlete is just playing, and ultimately land up post-playing days with no job opportunities. It's very heartening to see that government and corporates are system to give them employment. But what we need is that beyond their playing days, right? And that can only happen if they are afforded a good education system. It's not their fault they didn't get that. As the ecosystem, we'll have to provide that. Second thing is, any system has to be, centric, coach-driven, and system. So the system is very important, where either the corporate or the government or the academies come into place, where they create a scientifically driven system rather than landing up with an athlete, getting. It's a generic problem in India that they specialize early. So when we were in tops, we used to see that, okay, what is the high performance age of an athlete for a particular event? And based on that, we need to progress. So there are various facets which come into play while creating a champion athlete. And it is a slow progress. You try to do it in a hurry, try to achieve because an athlete is performing well. You try to train them more. That doesn't give you a result in long term. So it's the whole ecosystem which has to come into place. Suresh, on stage we have medalists from Commonwealth Games, Vijay Yadav, we have Lalit Upadhyay, Tokyo में bronze मिला था hockey में, and Sanjeeva, who has been with archery for very, very long time. And we know you, I've known you from your school days. So what does it take for an athlete to be very successful, whether he's a runner, footballer, hockey player, or a cricketer? And for you, especially you coming from sports hostel, going through all the hardships, and यूपी को तो कोई importance नहीं देते थे cricket में, वहाँ पे आपने जगह बनाई. So what in your opinion are things which an athlete should do to become successful? First of all, thanks to Sir Sports Star and Hindu Group, और जितने भी हमारे एथलीट सर हैं सबको मेरा नमस्कार. और यूपी से जैसे आपने बोला सर, स्पोर्ट्स हॉस्टल में मैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में था. एकेडमी के लिए इतना पैसा नहीं दे सकते थे पापा, क्योंकि 10,000 मंथली एकेडमी के लिए पैसा देना वो बड़ा मुश्किल था. और लखनऊ में जो हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज था वो बड़ा एकदम सेल्फ ड्रिवन था, एक डेडिकेशन वाला था. हमारे कोचेस बहुत अच्छे थे. तो एज नवनीत सहगल सर सेड अर्लियर कि जो क्रिएटिव होता है, मतलब मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है प्लेयर्स का. और जैसे सर ने भी बहुत अच्छा बात किया कि जो माइंड सेटअप है स्पोर्ट्स पर्सन का, अगर वो सिक्योर है, आसपास उसके पास डॉक्टर हैं, एक अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है विजय सर कि किस तरीके से प्लेयर का जो एक परफॉर्मेंस का जो माइंड स्किल है वो किस जनरेशन में जा रहे हो. कभी कभी वो फेल होता है, कभी कभी उसको सक्सेस से सीखना पड़ता है. बट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वो कैसे उस प्रेजेंट में रह के उस चीज़ को ओवरकम करे हो, कि वो कोचेज नहीं बताएंगे बट वो प्लेयर को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है. क्योंकि जब आप इंटरनेशनल हाई स्पोर्ट खेलते हो और एवरी फैंस ऑफ योर्स, एवरी पर्सन ऑफ योर फैमिली वांट्स टू गेट ए मेडल फॉर इंडिया, तो आई थिंक इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट टेक्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन, इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्रोसेस. क्योंकि वो आपका एक डिसिप्लिन लाइफ कैसा है, आप किस नज़रिए से उस स्पोर्ट्स को देखते हो, और आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जोश है, तो मुझे लगता है कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो. लेकिन उसके लिए आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपको वो कैसे ट्रीट करते हैं, आपको वो किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं, वो प्लेयर के साथ होना बहुत जरूरी है सर. तो एक सवाल और बस आपसे कि आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा, क्योंकि मुश्किलें बहुत थी. सर मोटिवेट आई वुड से कि मुझे देश के लिए खेलना था. उससे पहले मुझे अपने उत्तर प्रदेश के लिए खेलना था. उससे पहले मुझे अपने जिले के गाजियाबाद के लिए खेलना था. उससे पहले मुझे अपने जो मैं जहाँ पैदा हुआ था मुरादनगर के लिए खेलना था. क्योंकि पापा हमेशा बोलते थे पहले अपने देश का नाम, पहले अपने प्रदेश का नाम रोशन करो, फिर अपने देश का नाम रोशन करो.
तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जहाँ पर आप पैदा होते हो वहाँ पर आपके कल्चर होते हैं, आपके रूट्स होते हैं। और उस तरीके से माहौल था, जैसे घर में मेरे पापा आर्मी में थे, भैया टीचर हैं, तो एक तरीका होता है कि आप किस तरीके से उस गेम को लेते हो। और जैसे सर ने बहुत सी बात बोली कि इन्वायरमेंट जो स्पोर्ट्स का होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत सारी यूनिटी लेके आता है। डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, तो नई नई चीजें सीखने को मिलती है। और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम एक बड़े बड़े मूवमेंट में खेलते हैं, तो मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है हर स्पोर्ट्स से सीखना। लेकिन हर प्लेयर का कैरेक्टर अलग होता है, हर प्लेयर का जज्बा अलग होता है, हर प्लेयर कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का उसका स्किल्स होता है, तो उसको कभी खोना नहीं चाहिए और दिल से खेलना चाहिए सर। थैंक यू सुरेश। आई विल कम टू ललित। ललित, हॉकी हमेशा हर कोई कहते हैं नेशनल गेम, तो क्या था कि आपको लगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और क्या करना चाहिए आपके लेवल पे, जैसे जहाँ से आप आए और आप जाके एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता आपने 41 साल बाद हॉकी में मिला, तो आपको क्या लगता है? सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने लोग हैं सबको नमस्कार करता हूँ, और मैं हिंदू और स्पोर्ट्स स्टार को भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने प्रदेश में आके अपनी भावनाओं को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। सर, सब लोगों ने सर इतनी बड़ी बड़ी बात की सर, सबकी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, बट जो मेरा एक्सपीरियंस था सर ये था कि हम स्पोर्ट्स इसलिए स्टार्ट कर देते हैं कभी कभी कि पढ़ने में अच्छे नहीं, स्पोर्ट्स में चले आए तो। और रही बात, स्पोर्ट्स भी इसलिए चुन लेते हैं कि ठीक है इस स्पोर्ट्स में पैसा कम लगेगा या उस स्पोर्ट्स में पैसा कम लगेगा क्योंकि घर से कम पैसा मिलने वाला है। तो हम सभी स्पोर्ट्स पर्सन की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन अब धीरे धीरे जब ऊपर जाने लगते हैं तो बहुत से स्कीम्स आ जाते हैं, इंडिया टीम के लिए खेलने लगते हैं, टॉप्स मिल जाती है, स्टेट हॉस्टल में आ जाते हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। अब तो बहुत ही अच्छा हो गया है। तो जर्नी तो सर ऐसे ही स्टार्ट होती है, बट यही चीज़ था कि जिम्मेदारियों का एहसास जब पहले हो जाता है तो कदम अपने आप सर सही रास्ते पर चलने लगते हैं, इसके लिए ब्लेस्ड होते हैं। और दूसरी चीज़ सर, जब आपकी चाह मजबूत होती है किसी चीज़ को पाने के लिए तो सर हेल्प कहीं ना कहीं से मिल जाता है। बस जैसे भाई साहब ने भी कहा कि आप कितने फोकस्ड हैं अपने एम को लेके, टारगेट को लेके। और दूसरा है कि आप कभी ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है, आप हमेशा ये सोचो कि आप क्या पा सकते हो। तो आप खुद से भी मोटिवेट कर सकते हो अपने आप को, सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन, ये मेरा मानना है। और रही बात एक मेंटली कि आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो किसी चीज़ को लेके, वो ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट करता है, चाहे जिस फैमिली बैकग्राउंड से आए आप। और रही बात, अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें तो ऊपर के लेवल पे भी आपको खेलने के लिए उतना ही हेल्प करता है। और उसमें बीच में ही आपके उसमें स्पोर्ट्स में आपके स्टेट का बहुत बड़ा योग होता है, मतलब योगदान होता है उसमें कि आपको स्टेट कितना सपोर्ट कर रही है। और अब मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहा हूँ, मुझे खेलने का अपॉर्चुनिटी भी मिला। और जैसा सर आपने कहा कि 40 साल बाद ओलंपिक में मेडल आया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 40 साल पहले मोहम्मद साहिद सर वहाँ से खेले थे हॉकी से, और 40 साल बाद बनारस से अगर मुझे भी मिला देश के लिए मेडल लाने का, तो उसमें मेरे शहर का, देश का और प्रदेश का नाम हुआ। तो उसमें सर ये एक ऐतिहासिक मोमेंट तो था ही सर। और इसमें मैं सबसे बड़ा योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना ही योगदान है उतना ही हमारे प्रदेश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डॉक्टर आरपी सर, और जैसे हमारे माननीय सहगल सर बैठे हैं अभी, उन्होंने सब कुछ बताया। तो ये सब कुछ कड़ी से ही प्लेयर वहाँ पे निकलता है और उतने ही जाके सक्सेस मिलता है। तो इसमें किसी एक का रोल नहीं होता, सारा इकोसिस्टम सर ने जैसा बताया था उस सब का उसमें बराबर का योगदान होता है, तभी जाकर देश को पता चलता है कि उसका झंडा कहाँ पर जा रहा है। बस यही जर्नी है सर। थैंक यू। और विजय, जूडो के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं यूपी में कितना पॉपुलर है, और वहाँ से आप आए और मेडल भी जीता, तो क्या लगा आपको कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए था, आपको मिला शुरू में या आपको लड़ना पड़ा उसके लिए? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। हेलो, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ कि यहाँ मुझे बुलाया गया। सर, जूडो तो उतना प्रॉपर नहीं था यहाँ तक आने के लिए, लेकिन हमने मैं ऐसे गांव से हूँ कि कोई जानता नहीं था जूडो के बारे में, लेकिन मैं वहाँ से निकला और यहाँ तक पहुँचा। तो ऐसा नहीं है कि कोई गांव या शहर से आके कोई कर नहीं सकता, सभी कर सकते हैं, तो बस सपोर्ट मिलना चाहिए सर। जैसे मेडल आता तो सभी सपोर्ट करते हैं, उसके पहले कोई नहीं वो था। तो मैं अपने गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छा कर रही है और करेगी, उम्मीद भी कि और अच्छा करेगी भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे सर हम मेडल लेते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है, और उसके पहले जब हम तैयार होते हैं किसी गेम के लिए तो उसके पहले सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है।
तो वहाँ पे कुछ होना चाहिए था. Correct. Sanjeeva, you've been an archer, now you are a high performance coach. What is it that an athlete would need, especially from sports like say archery, which is a very technical sport, judo, not much very popular in India actually if you go for it. What do you think is the main attribute for an athlete to succeed? See, they're basically, if you look at sports success, any state, any government requires 6 things to be done. The first thing which is very important for winning an Olympic medal or an elite performance is infrastructure. When we look at infrastructure, because I'll give you an example, what has happened in Korea. Korea has been winning for the last 8 Olympics continuously the medal. And one of the things they have done very well is they copy the Olympic, whatever is going, suppose it's going to be at Rio, it's going to be at Paris, they copy the entire Paris mein, whatever kuch bhi hone ja raha hai, the entire environment of the stadia, they copy it back to Korea. So that athlete, when he goes to participate at the Olympic level, he sees exactly the same thing. It's very, very important at the elite level that do we have the digital, for example, जब हम खड़े होते हैं, shoot करते हैं, do we have the digital cameras there? Do we have the entire timers there? So I should be very, very comfortable in an environment when I'm performing at the Olympic level. So it's very, very important to create an infrastructure. The infrastructure has to be at the grassroots level, which we feel, if you look at most of the countries, they have a grassroots infrastructure level, which is the block level, then goes to the school level, the university level, and then finally to the national center level. So you will have to have the academies at the top level. You should have the state level and the district level centers, and then the grassroots block level center. So that is the first part. Now the second part, which is very important for an athlete to achieve success, is one, there are 3 elements to it. One is a physical element, the other is a mental element, and there is a technical element. So when you look at the technical element, I need to have good coaching. If I do not have good coaches at any state or at the national level, so is the pyramid there? Do you have a district level coaching system to a state level and then to the national level? And do you have level 1, level 3? Because if you look at the world level, they are level 1, level 2, level 3 defined. So that is a certification system. Because if you don't have good coaching, you will never be able to produce a good player. The third thing which is very important is the physical part. When you look at the physical part, do you have strength and conditioning experts? So in order for me to achieve success for an athlete, do we have the physical infrastructure? For example, the gymnasium there, you have the strength and conditioning expert, because without physical, and now it has become so much expertise-oriented that it's not no more that the coach ही बताएगा आपको क्या physical करना है. You should be having your strength and conditioning expert as an ecosystem to train him. The other aspect which comes to is the mental part. So you have taken care of the infrastructure, you have taken care of the physical, you have taken care of the coaching. Now you come to the mental part. Because when you play in the Olympics, whether it's a question of all the countries, they are basically at the same level. When physical preparation is same, but the mental edge only becomes the winner. So बहुत important है the role of a psychologist as part of the ecosystem, that do you have a psychologist as a team? Because finally a player is fighting when he's making challenges, split decisions लेने होते हैं उसको, और वहाँ पे उसके जो anxiety आता है, जो fear आता है. Today commander has seen that in the Tokyo Olympics, the heart rate पहली बार monitor किया जा रहा था. So when I'm shooting, or what is my heart rate? So that heart rate को control करना, and therefore if you look at the talent scouting, we are now looking at people who have lower heart rate. So in games like shooting, games like archery, you'll require lower heart rate, so that anxiety level, so that mental training becomes a very, very important part of the entire thing. The other thing which is very important, which is if you look at the Olympic preparation, is the sports science backup. Many of the states don't have a sports science setup. That means they don't have a sports science institute. They don't have, when you talk about sports science, we are looking at biomechanics. Because today, if you want to excel at the top level, you need to measure the angles of the body. You need to measure at what speed which you are performing. So there's software available now. For example, Dartfish. Are you having biomechanics to measure your angles? And if the angles are not same every time you're playing, whether it's flicking a ball, whether you're shooting an arrow, whether you're playing a golf, everything is depending on the angular movement. So are you able to optimize your resources, that means your energy, in an optimum level so that you are able to perform?
Lastly, what becomes important is, and there where Mr. Sehgal comes in, is that do you have a sports policy? You know, if you are wanting to achieve excellence in sport, you should have a sports policy which encourages, incentivizes good performance and rewards good performance, because at the end of the day, if I'm not able to take care of that, I'll not be able to do it. So it's important that as sports science, look at a nutritionist, look at a dietitian, look at a physiotherapist for recovery, for your proper nutrition. And if you had an amalgamation of all of that, which Commander said about the ecosystem, this is a part of the ecosystem. So it's no more a coach and a player. It's your complete team which works. You have a sports science team with nutritionists, sports physiotherapists, psychologists, and along with the ecosystem of infrastructure, equipment availability, then only you can achieve success. I'll come back to you, Commander. सुरेश, इतना सब सुना आपने, ये जूनियर आप क्रिकेट में ये सब अवेलेबल है जूनियर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सब चीज़ें, स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन, जिम, ये जो और मेंटल स्ट्रेंथनिंग करना क्रिकेटर का, ये थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। नहीं, बिल्कुल है सर, और सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि मेरे 2 नी के ऑपरेशन हुए हैं। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि उसका रिकवरी कैसा है। फिर उस टाइम पे थैंक्स टू BCCI, थैंक्स टू UPCA और अच्छे ट्रेनर मिले, अच्छे डाइटिशियन मिले, बट जो फैमिली का सपोर्ट मिला सर, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि डॉक्टर के आसपास जब रहते हो कि रिकवरी आप 2 घंटे रहते हो, आपका मेंटल पीस कितना इंपॉर्टेंट है वो, कि वो बहुत बड़ा एक प्लेयर की एक स्ट्रेंथ बनती है वो। तो जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगीनाथ सर ने जो एक स्कीम बनाई है स्पोर्ट्स इंश्योरेंस की होगी, क्योंकि काफ़ी स्पोर्ट्स में उस टाइम में इतना बढ़ावा नहीं था सर। अभी हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं दूसरे स्पोर्ट्स में, क्योंकि गोल्ड मेडल बहुत आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो इन प्लेयर्स की जो मेहनत है, जो जज्बा है सर, वो मुझे लगता है वो वाकई काबिल तारीफ है। जिस तरीके से हमारा देश का जो तिरंगा लहराता है बाहर ओलंपिक में, आप देखेंगे कितने बड़े बड़े मेडल्स आए हैं। अभी हर इवेंट में जाते हैं, जब नेशनल एंथम होता है तो इतना गूज बम लगता है इन सब प्लेयर्स को छोटे छोटे शहरों से आना, और वहाँ पर कोचिंग नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती है। फिर भी अभी आई थिंक यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है। रूरल प्लेसेस में कोचिंग स्टार्ट हो रही है, मेरठ में यूनिवर्सिटी बन रही है, लखनऊ में आप देखेंगे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसके बाद बनारस में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो जैसे सर ने बताया कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन मुझे लगता है बीइंग ये देसी, आपको दूध भी खाना है, देसी घी भी खाना है। एक तरीका होता है कि सबकी डाइट अलग है वो। जो माँ बाप ने बताया कि घी नहीं खाओगे तो ताकत नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन बोलता है घी खाओगे तो फैट आएगा। तो वो पर्सनल होता है सर, सबका अपना अपना चॉइस हो, सबकी बॉडी अलग है, सबके अपना एक, मुझे लगता है कि अपनी की बॉडी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो स्पोर्ट है सर, कल नहीं पता कि आप ग्राउंड से वापस आओगे कि नहीं आओगे। हो सकता है इंजरी होगी, आप 2 साल के बाद ग्राउंड पे वापस आओगे, क्योंकि जो फिजिकल स्पोर्ट होता है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और जो टीम स्पोर्ट्स है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है सर। आई थिंक जैसे वो बनारस से हमारे जो मित्र हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हॉकी में जब मेडल आया उनके पास, तो किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर सर स्पोर्ट्स में कितना अच्छा आप देखेंगे इनिशिएटिव ले रहे हैं। और नंदी सहगल सर ने बोला कि छोटे छोटे शहरों में वो मेंटेन कर रहे हैं, क्रिएटिव भी हो रही है, बट जिस तरीके से मेंटेन हो रहा हो, कि बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम ए फैसिलिटी, बट उसको मेंटेन होना बहुत जरूरी है सर, हर लेवल, क्योंकि बाहर की टीम हमेशा एक लेवल ऊपर खेलती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारा स्पोर्ट्स साइंस और डेवलप होगा, प्लेयरों की इंजरी के बारे में जाना जाएगा, उसका रिहैब कितना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे लगता है सर हर 2 दिन 3 दिन के बाद मेडल आता रहेगा हमारे देश में। Thank you, Suresh. And Commander, after all this, how do you look at whatever they have said, they have felt, at junior level? Somebody says, like he says, Sanjeeva says sports science, Suresh says desi ghee bhi khao, right? And Lalit has his own training methods. He's come without any motivation actually. He didn't have anyone to look up to. So how do you surmise, this process of preparing an athlete, and at what level should it begin? So I think they have touched very, very important aspects separately. I'll take on from what Vijay said, that the support starts coming once you get success. So I think it's the wrong stage to get success, because then there are, success have many fathers, as they say. बहुत लोग आ जाते हैं सामने कि हम ठीक है support करेंगे. So that has to start at the beginning. So grassroots पे start होना चाहिए. Talent, as I said, has to be picked up on potential rather than, and what Suresh said कि देशी घी भी खाना चाहिए. So obviously your nutrition also has to be part of your culture also. So it has to be aligned, right? And at some point in time, like what, infra, we pay a lot of emphasis to infra.
but wherever I've been, to whichever country where I've seen the sporting infrastructure, it's not brick and mortar. कि मतलब बड़े बड़े हमने स्टेडियम खड़े कर दिए, उसके मेंटेनेंस में ही पूरा बजट निकल जाता है. Because we are still a developing country and welfare is a very important part and social development is an important part. So obviously a lot of budget has to go there. So obviously it has to be basic infrastructure. So you don't have to have a stadium, but you have to have the field. Field of play होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. And उस stage से start करना चाहिए. And you need to give that support because half the talent leave the sport because the support is not there at that level. So when you come up, obviously you get a lot of support. You have your scientific, team. You have a support team. You have a mental trainer. So that whole ecosystem has to be created at the grassroots level. And once they start moving, and एक और चीज है कि जैसे एक कोच ने बनाया है एक खिलाड़ी को, सो ये एक है इंडिया में कि मैं अब इसको ग्रास रूट से एलीट लेवल तक लेके जाऊंगा. आई थिंक दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज एवरी कोच हैज हिज ओन इम्पोर्टेंस और उसकी वहाँ अहमियत है. तो अगर मैं ग्रास रूट में बना रहा हूँ और अच्छे बना रहा हूँ तो मैं आई शुड एम एंड क्रिएटिंग मोर टैलेंट एंड टेक आउट टैलेंट एंड गिव देम टू डेवलपमेंट स्टेज. वहाँ का अलग एथलीट होगा एंड उसके बाद एलीट एथलीट अलग है बिकॉज तब तक एथलीट बिल्कुल तब के एक बेहतरीन एथलीट बन चुका है, उसको बस अभी एक टैक्टिकल इनपुट चाहिए या मेंटल ट्रेनिंग चाहिए, तो वो उसका इनपुट इज टोटल डिफरेंट. वेयर एज जो व्हाट संजीवा सेड की टेक्निक which is important at grassroots. So that whole system has to be created where at every stage what an athlete requires is provided. So they've touched very, very important aspect, and of course talent, own motivation and the support of the system which is there. और ललित आप क्या एग्री करोगे कि किस लेवल पे आपको मिलना चाहिए? जैसे उन्होंने बोला कि मेडल मिलने के बाद तो सब मिलता है लेकिन उससे पहले कुछ नहीं मिलता. नहीं सर, ये टोटली एग्री है सर कि मिलने के बाद तो सर जाहिर सी बात है कि अगर हम टॉप से स्कीम की बात करें तो भी हमें इंडियन कैंप में ही मिलता है, वो उसके लिए ही बना हुआ है. तो जाहिर सी बात है कि जब जिस बेसिक रूट लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे रूरल एरिया में ये सब अगर सुविधाएं मिले, तो जैसे भाई साहब ने बताया कि 2-3 दिन में ही मेडल आने लगेंगे, सब कुछ होने लगेंगे, तो सही बात है कि जब वैसे तो अभाव में ही प्रभाव दिख जाता है हम लोगों के यहाँ. ज़्यादातर तो लोग सोचते हैं कि अगर वेट करेंगे कि फैसिलिटीज़ मिलते रहे तब तो फिर मेडल ही नहीं आएगा. लेकिन अगर ये सब चीज़ें पहले मिल जाएं, पेपर से पहले अगर फैसिलिटीज़ मिलने लगे तो सर मुझे उम्मीद है कि और जल्दी चीज़ें आने लगेंगी, असर दिखने लगेगा. सुरेश, आपको जाना है, आप जाने से पहले आपको लास्ट सवाल एक पूछता हूँ कि किस लेवल पे आप चाहोगे कि बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए? स्कूल में तो कुछ मिलता नहीं है, आपको लगता है कि स्कूल ही स्टेज है जहाँ पे आप टैलेंट एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहीं से एथलीट को सपोर्ट मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर, घर में जैसे सपोर्ट कैसे ललित भाई ने बहुत सी बात बोली कि अभाव है तो प्रभाव है, ये बहुत बड़ा शब्द है. और इससे होता है कि घर में जब बड़े भाई आप ग्राउंड पे लेके जाते हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 साल देखोगे जो पैंडेमिक में चीजें हुई हैं, अभी बच्चे लोग वो ग्राउंड स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसे आपको जो आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आपको स्वेट आता है, उसके बाद पहले आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज होने वाला है आने वाले टाइम स्पोर्ट्स में कि छोटे शहरों से इसलिए बच्चे आ रहे हैं क्योंकि उनको इतना गैजेट का पता नहीं है. और जो इसीलिए आप छोटे छोटे शहर से बड़े प्लेयर बनते हैं, इसीलिए बनते हैं कि बोलते हैं छोटे शहर का प्लेयर है लेकिन धाकड़ प्लेयर है. तो जैसे बनारस से हमारे जो भाई हैं, ललित भाई हैं, जो जूडो से आप बता देंगे, पता नहीं था कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती क्या है वो. तो बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, जो आसपास के कोचिंग मेथड है उनको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह का प्लेयर का माइंड सेट है वो, कि न्यूट्रिशन भी चाहिए आपको, एक फैसिलिटीज चाहिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर का मेंटल टफनेस कौन चेक करेगा, वो किस दौर से गुजर रहा है, फैसिलिटीज कैसे आगे बढ़ेगी. बट डेफिनेटली आई थिंक यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया. मुझे लगता है कि 1 या 2 साल में यूपी से और मेडल आए. कि उत्तर प्रदेश है बट ये बहुत उत्तम प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, छोटे छोटे शहरों से टैलेंट आ रहा है, वो वाकई माइंड ब्लोइंग है. और मैं कहना चाहता हूँ स्पोर्ट्स स्टार के माध्यम से, हिंदू ग्रुप के माध्यम से जो आपने इनिशिएटिव किया बहुत अच्छा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा बात करके. और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने ओलंपियंस को, जिस तरीके से मेहनत करते हैं, उनकी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट करते हैं. और आई होप कि इनसे मिलने का मौका मिलेगा, फिर थोड़ा सा पैडल स्वीप भी सीख लूँ. ललित भाई मुझे सिखा दीजिएगा पैडल स्वीप, क्योंकि आप बड़े शानदार प्लेयर हैं. Thank you, Suresh. Thank you for joining us. Thank you so much, Thank you very much. Take care, sir. Thank you, sir. Thank you. Sanjeeva, your views on
I think so what Commander has mentioned is very true. You know, आपको और सभी ने ये चीज़ बोला है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर कि एलिमेंट्री लेवल पे देखिए फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए. एंड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने में है. अगर आप इंडिया को देखेंगे, इंडिया का जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है एजुकेशन सिस्टम. Today we are the best in the world. I personally feel we are the best in the world as far as your university education goes. Of course, higher level पे we go. Why it is best? Simple सा देखिए. जब हम क्लास केजी से क्लास 12 तक जाते हैं, क्या करते हैं? हम जब पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है कि हर मंथ में मेरा एक टेस्ट होता है या क्वार्टरली टेस्ट होता है. तो अगर हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई कर दे स्पोर्ट्स में, जो हमने देखा है कि अगर आपने, क्योंकि मेरा ग्रास रूट अगर अच्छे स्कूल में हम क्यों भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग होता है. तो हमें क्या करना है कि स्कूल लेवल पे अगर मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए, क्योंकि एज अब ओलंपिक्स में घटती जा रही है. टुडे यू आर एबल टू गेट ओलंपिक मेडल्स एट 18 to 21 ईयर्स, बट वो तभी पॉसिबल है जब हमें 8 साल से बच्चे को ट्रेन करना पड़े. तो हम केजी से 12th तक तो बहुत अच्छा, हमारा 10th का बोर्ड का देखिए, 12th का होता है. सेम चीज़ अगर हम स्पोर्ट्स में फॉलो करें तो हमारा अगर स्कूल लेवल पे अगर हम अब फैसिलिटीज देना स्टार्ट कर देंगे, जैसे उन्होंने बोला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यू शुड हैव अ फील्ड, यू शुड हैव अ शेड वेयर यू कैन प्रैक्टिस, तो वो एक कोच मिल जाए. तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड इन द स्पोर्ट्स पॉलिसी दैट हम स्कूल लेवल पे करेंगे तो, और उसके साथ कॉम्पिटिशन्स होना बहुत जरूरी है. क्योंकि एक चीज जो हमने स्टडी किया जितने भी आपके कंट्रीज को, तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे को अगर क्लास सेकंड और थर्ड में हम लोग को पता नहीं था कि टॉपिंग क्या होता है, लेकिन जब हम टॉप करते हैं ना, जब जाते थे किसी सोसाइटी में तो मेरे फादर मदर बोलते यार मेरा बेटे ने टॉप किया, बट वो खुशी जो फादर मदर के चेहरे पे होती थी टॉप करने से, उसको हमें लगता है टॉप करने में बहुत अच्छा है, तो हम और पढ़ते थे कि टॉप करें. तो क्या होता है कि जब हम स्कूल लेवल पे चैंपियनशिप शुरू कर देंगे जो कि क्वार्टरली होंगे, जैसे में एग्जाम्स होते हैं, और वो बच्चा जीतना शुरू कर देगा अगर वो क्लास 2 एंड क्लास 3 में, तो क्या होगा, वो चैंपियन की उसकी भूख आ जाएगी, वो ललक आ जाएगी. तो जब तक वो 10 तक पहुंचेगा, वो 8 ईयर्स में उसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो जाएंगे, क्योंकि वो खेल रहा है, और जब खेलेगा तभी जीतेगा इंडिया. Thank you. And Commander, concluding observations from you on, I mean, how would you summarize? I mean, what is to be done now? So I think everyone has touched a very important aspect, and so as a country, if you see, I feel that we should concentrate on capacity building, and when I say capacity building at every level, so if you see whatever is my experience, that we are too dependent on foreign experts, right? And why are we dependent on foreign experts? Because we have not created the expertise within our country in last 75 years. But there has been a lot of movement in last 4-5 years in the present government across the state as well as in central, where we are building capacity building. Then even corporates are coming in. I belong to an organization which is totally dedicated towards capacity building, creating good coaching system, creating good administrators, because that's also very important. People who are running the sport ecosystem, they also have to have that basic knowledge of running an elite system, a grassroots system, or a developmental system. So if we create that, because no country has succeeded at Olympics or any international arena if they have not created their own capacity. Talent is never short. With our country and with our population, I don't think so we will ever fall short of talent. But yes, India, it is an inflection point as far as sports is concerned. If we create good grassroots program, we give them support. Athlete does not have to run around for support. They have scientific, system right from grassroots level. It doesn't have to be very complicated ones or very technical ones, which an elite athlete requires. But basic knowledge of that, what is performance? How can you improve your performance? And not by taking, substance which is not allowed by, international agencies like WADA or NADA. And performance is done as a scientific process. That itself, knowledge is, if it is given at that level, that's good enough. And make sure that the talent is given support up from grassroots till the thing. Like Khelo India is one of the initiatives of the central government, which is trying to address that at every level.
Toss may be at the one end of the spectrum, which is also required. I'm not saying it's not required. And the other stakeholders, it may be an NGO, it may be a non-profit organization, it may be a corporate CSR, or even corporates who are for-profit getting into sports ecosystem has to provide that. So if we get all these, blocks of the puzzle into place, I'm sure India will only move upwards and northwards from here. Thank you for your priceless time for us. And Sanjeeva, thank you. Lalit, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Vijay, thank you very much. And we'll wind up this opening session. I've been told twice to leave the stage. So thank you all of you. किसी को पूछना है तो yes please. हेलो विजय, मेरा सवाल आपसे है, अभी तो कॉमनवेल्थ का मेडल आ गया, अभी ओलंपिक में मेडल लाने के लिए क्या ज़रूरत है जूडो में? क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए आपको? सर ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, अगर ऐसे सपोर्ट मिलता रहा तो 100% मेडल आएगा. नवनीत सर इधर है, कुछ भी चाहिए तो मांग लीजिए अभी. Anyone else has any question? Manjusha, anything from you? Hello to all the panel. It was wonderful to hear. And I just wanted to ask any one of you, or probably the athlete like Lalit Babu, कि जैसे हम बोलते हैं कि ऊपर तो बहुत सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है. हमारे टाइम में अगर अभी जन्म होता तो it would have been, amazing to play in this era right now. But नीचे जो है develop करने में, वो when it comes to hockey, talent search is one of the biggest, I think, challenges for us in India, because every state is so different, culture is different, diet is different. आप उसमें अपने गेम के लिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर होते और आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते एक दिन के लिए, तो आप क्या करते टैलेंट सर्च के लिए? मैडम, पहली बात तो कोई भी टैलेंट एक दिन में नहीं ढूंढा जा सकता. टैलेंट को भी हार्डवर्क हम लोग जानते हैं कि बीट करता है. सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में जो खेलों के लिए केवल जो बोलते हैं कि खेल के नाम पे चल रहा है, वो चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली बोलता है कि उसको सीरियसली लें, क्योंकि स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके साथ साथ जो CBSE बोर्ड है, क्योंकि जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं वहीं हम खेलना भी सीखते हैं. इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जहाँ पढ़ाई है वहाँ खेल भी है. अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, क्या पता वो खेल में अच्छा हो जाए, तो इनडायरेक्टली एक रूट हमारा वहाँ से तो निकलना ही निकलना होता है. मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा. और दूसरी चीज़, जो हमारी गवर्नमेंट ने इतना स्टेडियम बना रखा है, सब कुछ है, तो आओ फ्री खेलो, बस आप खेलो दिल से, जिस चीज़ के लिए हम छोड़ रखे हैं आपको. तो अभी रही बात उत्तर प्रदेश की, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, सब कुछ कवर ही हो गया है. लेकिन जो अभी हम सर ने बोला कि विजय जो मांगना है मांग लो, तो ऑलरेडी हमारे माननीय CM सर ने, योगी सर ने बहुत कुछ दिया है. हमारी स्पोर्ट्स की कैबिनेट से पास हो गया हमारा सब कुछ, जॉब का सर ने बता दिया. सबसे बड़ी बात जो आज तक यूपी में नहीं हुआ था, कि पहली बार सुनने में आया कि यूपी में इंश्योरेंस भी प्लेयरों का हो रहा है. तो ये भी एक प्लेयरों को बूस्टअप करेगा कि उनको इंजरी का प्रेशर नहीं रहेगा. जो हम एक एज एथलीट सोचते हैं कि हमें इंजरी हो जाता है तो हमें अपना सर्जरी कराना पड़ता है, जिसके लिए 1.5-2 लाख रुपए लगता है. मैं वहाँ भी प्लेयर है, आपको भी बात पता है अच्छे से. तो एक मेंटली जो सबसे होता है कि नहीं हम फ्री हो गए हैं, हम ऊपर के लेवल पे तो हमें सब मिलता है, लेकिन नीचे के लेवल पे जो ये स्टेप हुआ, इसके लिए मैं सर जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, डॉक्टर RP सर का भी ये स्टेप बहुत ही मतलब सराहनीय है. और दूसरी चीज़ मैम कि जब एक गरीब बच्चा जब जाके ग्राउंड में केवल खेलना सीखता है ना, तो उसके जो टैलेंट होते हैं वो अपने आप बाहर आने लगते हैं, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है. थैंक यू मैम. थैंक यू. We have some further questions. Hello everyone. My question is for Sanjeeva sir, being a coach of archery team. I'm also a shooter, so I want to ask what is the basic need? I mean,
how can an athlete deal with the sudden climate change and the ambience change which he or she gets when he travels abroad? Because I have faced it many times, and what happens, either we get ill or we get a tremendous pressure due to the sudden ambience and climate change. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा आपको बताया था, पहला जो हमने स्टेप बोला था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब हम कोच करते हैं एलीट टीम को, तो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ का ध्यान रखते हैं। एक, हम क्या एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एंग्जाइटी और फियर तब आता है जब आप खेलते कम हैं। कंपटीशन जितना ज़्यादा मिलेगा आपको, उतना ज़्यादा आपका वो डर निकलता है। तो पहली चीज़ है कि क्या आप कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं। और जो एलीट लेवल पे आप देखेंगे, साइंटिफिकली स्टडी किया गया है कि 30% ट्रेनिंग होती है एंड 70% आपको कॉम्पिटिशन में भाग लेना है। तो पहला चीज़ है कि कॉम्पिटिशन में आप ज़्यादा भाग ले रहे हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। दूसरा चीज़ है, जहाँ पे हम ट्रेन करते हैं, जैसे नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस है या जो अकेडमीज में, वहाँ पे वो एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होगा जो एनवायरनमेंट में आप खेलने जा रहे हैं। तो वेदर वो डिजिटल डिस्प्ले है, वेदर वो आपके टाइमर सिस्टम्स हैं, वेदर आपके फ्लिप चार्ट्स हैं, जिससे कि आपके मन के अंदर में जब आप खेलते हैं आपको कोई बदलाव नज़र नहीं आता है जब आप बाहर जाते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बोला कि समय का बदलाव, तो उसको एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। तो दो चीज़ हम करते हैं। तो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वन, एयर कंडीशंस हॉल्स बना रहे हैं, जिससे कि अगर हमें बहुत ज़्यादा है तो आई कैन इवन प्ले इनसाइड, तो इनसाइड खेल पाए। दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हमें टाइम की वजह से 6 घंटे का डिफरेंस है, तो नाइट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस तरह से हम तो अपना जो सिचुएशंस को जितना ज़्यादा हम उसके बराबर कर पाएंगे, टाइमिंग में, एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में। हम अगर सपोज हमें जाना है 22 डिग्री टेम्परेचर में और यहाँ पे 38-40 है, क्या हम कहीं और ट्रेनिंग कैंप लगा सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर सेम रहे, या हम एक हफ्ते पहले जाके वहाँ पे ट्रेन करके अपने को एप्टाइज कर पाएंगे, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। Ashok Bambi wanted to ask a question. थैंक्स स्पोर्ट्स स्टार। मैं कमांडर साहब से एक शेयर करना चाहूँगा ये चीज़ कि खिलाड़ियों के उत्थान में एसोसिएशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और सहगल साहब से भी मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनके ऊपर भी क्या कुछ अंकुश लगाया जाएगा? आज आप देखिए, अमूमन हर खेल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो ऑफिस बेरर्स 30-30, 40-40 साल से बैठे हुए हैं वो हटने का नाम नहीं लेते हैं। एक तरीके से उस पर उन्होंने अपना पूरा एकाधिकार बना रखा है। इवन जब उनका कार्यकाल या उनकी ध्यान भी हो जाता है तो वो अपने किसी परिवार को बना देते हैं, या प्रेशर पड़ता है तो वो अपनी कन्या को या अपनी वाइफ को भी बना देते हैं। तो क्या यूपी गवर्नमेंट इस तरह का कुछ तरह का अंकुश लाएगी कि कोई भी पदाधिकारी 3 साल, 4 साल या 5 साल का उसका टेन्योर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा? क्योंकि अंत में ये खेल और खेल खिलाड़ी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है इसका। I think Kamal is there in the sports code, if you can just. तो आपका इसके दो पहलू हैं, मतलब बहुत सिंपल नहीं है जितना हमें लगता है। और एक जगह प्रॉब्लम है और एक जगह उसके कई एडवांटेजेस भी हैं, तो मैं दोनों कवर करना चाहूँगा। तो स्पोर्ट्स कोड जो है 2000 जो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो किया हुआ है, उसको एंडोर्स किया हुआ है, तो वो तो अब टेन्योर पे पूरा अंकुश लगाया हुआ है उन्होंने कि आप 2 टेन्योर कर सकते हैं या प्रेसिडेंट 3 टेन्योर कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एक पद संभाला हुआ है तो दूसरे पद के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये पद भी काउंट होगा, इसका टेन्योर भी काउंट होगा। और इसमें आपने देखा ही होगा कि अभी रिसेंटली काफ़ी फेडरेशंस इसमें प्रॉब्लम में आई है। बट आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपको एक स्पोर्टिंग पावर हाउस बनना है तो आपको इंटरनेशनल फेडरेशंस में भी आपका इन्फ्लुएंस होना होगा।
और वो बहुत छोटा कार्यकाल से आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे. सो अगर आप बाहर कोई भी देश देखें जहाँ इंटरनेशनल फेडरेशंस हैं, वहाँ आप देखेंगे कि उनके कार्यकाल बहुत लंबे हैं. बट यस कि वो भी गलत है कि अगर आप अपना एक फ्यूडम बना लें कि बस एक परिवारवाद कर लें कि बस अगर मेरा टाइम हो गया तो फिर मेरे बाद मेरा बेटा ही करेगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप एक अच्छे टैलेंट को उभर के आने नहीं दे रहे और फिर उसमें स्पोर्ट्स का फ़ायदा नहीं होगा. सो हमें दोनों एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा. एंड आई थिंक लेजिस्लेशन बन गए हैं, स्पोर्ट्स कोड अभी उसमें इंश्योर करता है. बहुत सारे फेडरेशनों पे COA बिठा दिए गए हैं ताकि ये जो हमारे यहाँ चलता आ रहा है वो शायद बंद हो जाए अब. तो होपफुली थिंग्स विल बिकम बेटर फ्रॉम हियर. एंड so you can see TT is right now, COA is there. There are COA in, I think, judo also as of now. And so obviously things will improve. Court is taking cognizance of it. The Parliament has passed the 2011, which has been, of course, endorsed by Supreme Court also. So things are improving. And as a मतलब जैसे खेल के प्रेमी हैं तो हम सोचते हैं कि ये इससे आगे ही बढ़ेगा, इम्प्रूव ही होगा, पीछे नहीं जाएगा. It will not be regressive. Thank you everyone. So we would request you to just stay back for just a couple of moments. So ladies and gentlemen, some really important aspects have been touched with this session. And now, before we proceed, we would like to express our gratitude to our honorable panelists who are present here. So I request our respected moderator for this session to please present a humble gesture of gratitude to all our panelists. So can we please present a humble gesture of gratitude on behalf of our entire team. I request Mr. Vijay Lokpalli ji to please present it to our panelists. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी के लिए. Thank you, gentlemen, for being a part of this wonderful session and sharing your thoughts and insights into it. And we would also like to thank Suresh Raina ji, who joined us through the digital platform, and he was also a part of this session. Let's hear it. A big round of applause for him as well, ladies and gentlemen. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much, sir.